ये ले अपना भी निकाल लेना बाद में। देखा है जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। नमो वितरागाय नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम नमो हरिहंताणम। नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सौव साहुणम नमो लोये सौव साहुणम। ऐसो पंचनमुक्कारो एषो पंचनमुक्कारो सौव पावकपणासनो सर्वपावकपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं मंगलानं च सव्येसिं पठमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निज स्वभाव से सद्गुरु निज स्वभाव से सद्गुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सिद्ध परम सत्यम निश्चय वन्द्य है। सत्यं निश्चय वन्द्य है। 33 कोटि देवगण 33 कोटि देवगण विश्वहितार्थे स्वागतम्। विश्वहितार्थे स्वागतम्। जग कल्याणक यज्ञ में जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय द्यो आशीषम्। मंगलमय द्यो आशीषम्। सिद्ध स्वरूपी मूर्तमोक्ष सिद्ध स्वरूपी मूर्तमोक्ष। गलती भूल को माफी द्यो। गलती भूल को माफी द्यो। व्यवहारे सद्बुद्धि हो। व्यवहारे सद्बुद्धि हो। निश्चय में अभिवृद्धि द्यो। निश्चय में अभिवृद्धि द्यो। जय सच्चिदानंद। 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 जय सच्चिदानंद।
જય સચ્ચિદાનંદ જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ બહુ સારું. ચાર્જિંગ કરવું છે ના થઈ ગયું કરીને લાયા એક કવિરાજનું નાનું થોડી લાઈન છે આપણે બહુ સારું. બોલીએ બહુ સારું. દાદા ભગવાન વિના દાદા ભગવાન વિના કઈ જ ગમે નહીં કઈ જગમે નહીં. દાદા ભગવાન વિના દાદા ભગવાન વિના કઈ જ ગમે નહીં કઈ જગમે નહીં. કીર્તન ભક્તિ વિધિ કીર્તન ભક્તિ વિધિ વિના કઈ જ જચે નહીં વિના કઈ જચે નહીં. કીર્તન ભક્તિ વિધિ કીર્તન ભક્તિ વિધિ વિના કઈ જ જચે નહીં વિના કઈ જચે નહીં. દાદા ભગવાન વિના દાદા ભગવાન વિના કઈ જ ગમે નહીં કઈ જગમે નહીં. આખું પદ છે હા હા જબરદસ્ત છે પદ છે ને. લગાવવું છે અહીંયા. ના ના Okay. કાંઈ ના તો આ લાઈન જે આપી છે ને બહુ જબરદસ્ત આવ્યું શું વાત છે वो अपना प्लास्टिक का भी क्या है ना वो अंदर पड़ा नहीं है उनको टिकाने को तो इधर से घुमा के पुस्तक ले सकता है वीडियो. हाँ બહુ સરસ આ મોકલાવ છે આ લોકોને મોકલાવો છે? હા મોકલાવો છે. એ તો વાંચીને ચાલે ને એક જ મિનિટ ચાલે શું જો મને મોકલો ને તમને મોકલી આપું આપો તો આપણે વાંચી શકીએ હા એવું કર એવું સરસ છે એવું તમારે ગ્રુપ ગ્રુપ ઉપર છે ગ્રુપનો નંબર છે ના ગ્રુપનો નંબર મારી પાસે ને તમારી પાસે ખરો પુના બીજો આપણે છે એમને મોકલો એમાં ગ્રુપમાં છો ને તમે? હા તમને મોકલે એટલે હા તમે પછી છે ગ્રુપમાં નંબર મોકલી એનો શકશો એમનો હા નંબર છે હા ગઈકાલે લીધું. હા બસ તો છે અચ્છા, એવું છે કે પછી મીનાબેન ને કેવું પડશે तिथं नेपाळी नाही हा हा इथं आहे का કેએસએસ પુણે એ એમને મોકલશે એમાંથી મોકલાવશે ને એમનાથી એમના ગ્રુપમાં મેસેજ થાય ને એમનાથી. ते नाही, सगळं साफ करायला नाही. मीनाबेन, admin च का मागच्या अच्छा. खिडकीवर ठेवा. એટલે મને મોકલો ને હા મોકલો. હા બસ એમને મોકલી દો પછી તમે એમને મોકલી દો એક મિનિટ હા. चेतन के चेतन का त्रिकोणी स्टेप चेतन. किधर रखा है चेतन, फोन रखने चेतन. के लिए वो? अभी तुम्हाરું છે 98506 ओके ओके તમારી ફોટો પાડો તો તમે સીધું. ओके हाँ राहुल તમારો નંબર નથી મારી પાસે એને જ એ પછી ઝૂમ થશે ફોટો પછી. बोला कंप्यूटर के पीछे है उधर जिधर चार्जिंग को रखते हैं ना उधर ही की तरफ वो कंप्यूटर है.
पहले नजर से તમે મોકલી આપો ને આ લોકોને. શું તમે મોકલ્યું ને? હા, ઓકે મળી ગયું મને હવે મને મેં લઈ લીધો ફોટો, હું આમને મોકલી દઉં છું. ओके तो चार्जिंग को लगता है ऐसा बोला उसने नीचे के साइड मिल हाँ बस इस तरह से शूटिंग के साथ जब जरूर पड़ती है ऊपर करो के થઈ ગયું? આવી ગયો. દાદા ભગવાન વિના દાદા ભગવાન વિના કઈ જ ગમે નહીં. કઈ જ ગમે નહીં. કીર્તન ભક્તિ વિધિ કીર્તન ભક્તિ વિધિ વિના કઈ જ જચે નહીં. વિના કઈ જ જચે નહીં. પ્રગટ ભગવાનની પ્રગટ ભગવાનની સિદ્ધિ જ લખે અહીં. સિદ્ધિ જ લખે અહીં. અવિનાશ સૂર્ય ચંદ્ર અવિનાશ સૂર્ય ચંદ્ર શાશ્વત તપે અહીં. શાશ્વત તપે અહીં. ઓલિયાની ફકીરીને ઓલિયાની ફકીરીને સ્થૂળ ક્રિયા કાંડ નહીં. સ્થૂળ ક્રિયા કાંડ નહીં. ખુલ્લી જગતમાં શિરે ખુલ્લી જગતમાં શિરે માનતાન ગાન નહીં. માનતાન ગાન નહીં. નિર્માની મસ્તાન હોય નિર્માની મસ્તાન હોય સ્વતાને ગુલતાન હોય. સ્વતાને ગુલતાન હોય. ધૂની ધ્યાની જાગૃતિએ દુની જ્ઞાની જાગૃતિએ કે બનો સુલતાન હોય. દેવનો સુલતાન હોય. નિરાકુળ માન દાટ્યે નિરાકુળ માન દાટ્યે માયા સૂતક સ્નાન કરે. માયા સૂતક સ્નાન કરે. પ્રતિકૂળ ઘાટ માટે પ્રતિકૂળ ઘાટ માટે જીવતું સ્મશાન અરે. જીવતું સ્મશાન અરે. ઘાટમાં અઘાટ પદને ઘાટમાં અઘાટ પદને છાપ ખાને સ્થાન નહીં. છાપ ખાને સ્થાન નહીં. ધર્મ નામે છપાયેલા ધર્મ નામે છપાયેલા નશા કેટલી ગંદા ભરી. નશા કેવી ગંદા ભરી. ઉઠા સુધી ભણેલાની ઉઠા સુધી ભણેલા
વિદ્યાપીઠ ખિસ્સામહી વિદ્યાપીઠ ખિસ્સામહી તૂટ્યા પૂર્વે સંધાયેલી તૂટ્યા પૂર્વે સંધાયેલી આડ બીજે કીટાલહી આડ બીજે કીટાલહી પૂર્ણને ઢબુના ઢને જગત કકો કામ નહીં જગત કકો કામ નહીં બુદ્ધિવાળા અબુધ પર બુદ્ધિવાળા અબુધ પર જગત થૂકે પાન ખઈ જગત ઠૂકે પાન ખઈ થૂકનારનો અહમ થૂકનારનો અહમ ચોટ સાથે તિરસ્કાર ચોટ સાથે તિરસ્કાર અથડામણથી અબુધ ઢ અથડામણથી અબુધ ઢ ખોટ સમજે વેપાર ખોટ સમજે વેપાર સમૂહ જગત પુણ્યોદય સમૂહ જગત પુણ્યોદય સમૂહ જગત પુણ્યોદય સમૂહ જગત પુણ્યોદય જાગી જો આ અવતાર જાગી જો આ અવતાર જ્ઞાની વિક્રમ તો જ્ઞાની વિક્રમ ટોચ ઐશ્વર્ય હાહાકાર ઐશ્વર્ય હાહાકાર સમૂહ જગત પુણ્યોદય સમૂહ જગત પુણ્યોદય જાગી જો આ અવતાર જાગી જો આ અવતાર જ્ઞાની વિક્રમ તો જ્ઞાની વિક્રમ ટોચ ઐશ્વર્ય હાહાકાર ઐશ્વર્ય હાહાકાર 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 ભગવાન જગાડનાર ભગવાન જગાડનાર તે પ્રગટ મોક્ષધામ તે પ્રગટ મોક્ષધામ કલ્પાતીતા અવતાર કલ્પાતીત અવતાર પુણ્યોદયી કાઢકામ પુણ્યોદયી કાઢકામ ભગવાન જગાડનાર ભગવાન જગાડનાર તે પ્રગટ મોક્ષધામ તે પ્રગટ મોક્ષધામ કલ્પાતીત અવતાર કલ્પાતીત અવતાર પુણ્યોદય કાઢકામ પુણ્યોદય
પુણ્યોદય કાઢકામ ભગવાન હોય ત્યાં ભગવાન હોય ત્યાં નિષ્ક્લેશ સમાધિ રહી નિષ્ક્લેશ સમાધિ રહી મોક્ષ દાન હોય ત્યાં મોક્ષદાન હોય ત્યાં પદ્માસન પલાઠી થઈ પદ્માસન પલાઠી થઈ ભગવાન હોય ત્યાં ભગવાન હોય ત્યાં નિષ્ક્લેશ સમાધિ રહી નિષ્ક્લેશ સમાધિ રહી મોક્ષદાન હોય ત્યાં મોક્ષદાન હોય ત્યાં પદ્માસન પલાઠી થઈ પદ્માસન પલાઠી થઈ જગજી છૂટી ગયા ધગજીયા ઝૂકી ગયા નાભિનિરાવરણી થઈ નાભિનિરાવરણી થઈ કેવળ પ્રગટ સુધી કેવળ પ્રગટ સુધી સંકિતિ અવર્ણિ વહી સંકિતિ અવર્ણી વહી ઝૂકી ગયા ધગજીયા ઝૂકી ગયા નાભિનિરાવરણી થઈ નાભિનિરાવરણી થઈ કેવળ પ્રગટ સુધી કેવળ પ્રગટ સુધી દશાજ અવર્ણિ વહી દશાજ અવર્ણી દશાજ અવર્ણિ સ્વહી દશાજ અવર્ણી સ્વહી જય સચ્ચિદાનંદ. ભારી પદ બોલો આપણને શું મળ્યું કેવા દાદા મળ્યા આપણને કેવા દાદા મળ્યા એવું કીધી આ બધી मेरी सीक्रेट बाहर आ गई यही सच्ची बात है गुजराती विल डू કપલેન नहीं Complain. चालू जी चालू ઓકે સેવા ઈદી ભાષા ખોલવું પડે એમ કહે છે કે વિતરાગો એમની નજર ઢળેલી હોય એટલે આમ જ જોતા હોય શું કામ પ્રશ્ન શું કામ આપણે પ્રશ્ન લઈએ શું કામ અને દિગંબર સંપ્રદાયની મૂર્તિઓમાં ભગવાનની પ્રતિમામાં ચક્ષુ જ નથી રાખ્યા હા હા એટલે એ છે પ્રશ્ન ઓકે શિવજી કોઈ પણ શિવજીનો તમે ફોટો જોશો ને આમ સામે જુઓ ને તો આંખ ખુલ્લી હોય છે બંધ હોય છે 1000 बार देखा तो भी नहीं आया
જે કહે તો ખાતરીપૂર્વક मैं तो बता नहीं बोल શિવજીનો કોઈ કશે પણ તમે ફોટો જોશો ને આમ બંધ હોય આમ. હવે અમે છે ને જબલપુર ગયા बाद में वो वीडियो मेरे को भी देंगे प्लीज હતા. અમે જબલપુર ગયા હતા અને એ શિવજીનું મંદિર હતું ત્યાં એ લોકોએ 12 જ્યોતિર્લિંગની પ્રતિષ્ઠા કરેલી हाँ અને શિવજીની બહુ મોટી પ્રતિમા હતી, વિશાળ. એટલે અમે લગભગ 1-1.5 કિલોમીટર ને ત્યાંથી તમને દેખાય, ઊંચે સ્થાન પર હોય ને તો દેખાય, એટલે દેખાતા હતા. હવે આમ સામેથી જોઈને તો શિવજીની આંખ બંધ રાખે, આપણને દેખાય કે બંધ છે કરીને. અને આમ જેમ જેમ નજીક ગયા ને પછી મંદિરના પ્રાંગણમાં ગયા અને એક વચ્ચે સર્કલ રાખેલું, આમ સેન્ટર જેવું રાખ્યું અને ત્યાં ઉભા રહ્યા અને આમ દર્શન કર્યા ને આમ ઉપર દેખાતું બહુ મોટી પ્રતિમા હતી. આમ આંખ ખુલ્લી દેખાય, આંખ ખુલ્લી દેખાય, આમ જસ્ટ આમ આમ કર્યું. હવે આ અમુક લોકો એમ કહેવાનું છે કે નાક ઉપર ધ્યાન કરે છે, નાક ઉપર ધ્યાન કરે. હવે આપણને દ્રષ્ટિ છે ને આપણને દ્રષ્ટિ મળેલી છે ને એટલે આપણે ઘણી બધી વસ્તુ ખબર પડે. જોકે દાદાએ પણ કીધેલું છે કે નાક છે ને માણસનું અહંકારનું સિમ્બોલ છે. કેવું નાક છે ને એના પરથી માણસ કેવા અહંકારી છે કે એવા છે ખબર પડે. આપણને નથી ખબર પડતી પણ આ તો એક વાત છે, નાક પરથી ખબર પડે માણસ કેવા અહંકારી છે. અને એમ કે નાક ઉપર ધ્યાન કરે છે. હવે આપણે જે આખી જોવા જાણવાની પુરુષાર્થની જે વાત કરી છે એમાં આપણને શું કીધું કે જોયા કરવું જે બને. હવે જે બને એને એમાં શું જોવાનું શું છે કે જોવા કીધું પણ શું જોવાનું. જોવાનું શું પણ તો કે નહીં જોવાનું. હવે અવસ્થાને જોવી, તમે તેનું ગુજરાતી બરાબર? હા, અવસ્થાને જોવી કે ના, અવસ્થાને કોણ જુએ? ના, એટલે અવસ્થાને આંખ જુએ, ઇન્દ્રિયો જુએ, એટલે નામધારી બરાબર છે, નામધારી જુએ. તો મારે જોવાનું છે તો મારે એટલે અંતરાત્મા દશાએ જાગેલો હું જોઉં. શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ પ્રજ્ઞાશક્તિ બતાડે એ, પ્રજ્ઞાશક્તિ બતાડે એટલે અતિન્દ્રિય જ્ઞાન બતાડે તે, અને નામધારી જે જુએ તે ઇન્દ્રિય જ્ઞાનથી જુએ. નામધારી જે જુએ તે ઇન્દ્રિય જ્ઞાનથી જુએ. ઇન્દ્રિય જ્ઞાનથી જોયેલું ભોગવટો કરાવે અને અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી જોયેલું કરાવે એટલે પોતાને કરાવે. અને અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી જોયેલું ભોગવટો દેખાય, ભોગવનારો દેખાય, જેમને ભોગવટો થાય છે એ પણ દેખાય. એટલે પોતે ભોગવનારા થતા નથી. એટલે કોઈ પણ સંજોગ છે એનો છેલ્લું પરિણામ ભોગવટો છે. ત્યાં ગમે તેવી પેલી સારી હતી, ત્યાં બધી કહે કે ના યાર બરાબર નથી, મજા નહીં આવી. ગઈકાલે આખો દિવસ કઈ 4 વખત પીધી પણ કશું ચાનું ઠેકાણું જ ના પડ્યું છે. આજે पड़ी आप क्या करिए? बहुत अच्छा नहीं दीदी. એટલે દરેક સંજોગની અસર સારું કે ખરાબ, ગમતું કે ના ગમતું પ્રમાણે જ આવે. એટલે ભોગવટો છે.
એ ભોગવટો જે આવે છે એને ભોગવનારો અહંકાર છે અને એ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર છે. એ ચાર્જ અહંકાર કે એટલે તરત એનું વિભાજન કરવું પડે આપણે. वो आप बीच में हमको भी सवाल पूछा करो, मैं एक ही लाइन चलाए હા, भाई हमको क्या समझा, तुम क्या बोलते हो. એટલે એક એ ભોગવટાનો અહંકાર છે અને ભોગવટાનો અહંકાર બોલાવડાવે. એ જેટલો ભોગવટાનો અહંકાર છે અંદર, ભોગવટો તો આવે જ છે. ઊંઘમાં પણ ભોગવટો આવે છે. તો ઊંઘમાં અહંકાર હોતો નથી એટલે બોલનારો નથી, એટલે વેદનારો નથી, ભોગવનારો નથી, વેદનારો નથી. એટલે એ જે વાણી બોલાય છે ત્યારે મને ગમ્યું, મને ના ગમ્યું, એ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર જે છે અંદર ભરાઈ પડેલો તેનું એક્સપ્રેશન છે, તેનું એક્સપ્રેશન છે. એટલે અંદર આપણો ડિસ્ચાર્જ અહંકાર, ભોગવટાનો અહંકાર કેવો કેટલો છે તે આપણને વાણી પરથી ખબર પડે. ये मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, આ ગમ્યું, આ મને ના ગમ્યું, બરાબર. એ ભોગવટાને શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ જોવાનું અને એનું સિમ્બોલ, એનું ઇન્ડિકેશન નાકને જોવાનું છે. નાક એ અહંકાર છે. કયો અહંકાર? ડિસ્ચાર્જ અહંકાર. કારણ કે જ્ઞાન પછી, દ્રષ્ટિ પછી ડિસ્ચાર્જ અહંકાર જ રહ્યો, બરાબર. એટલે કોઈ પણ સંજોગ હોય એ સંજોગની ડિરેક્ટ અસર આપણને ના રહી હવે. આમણે કર્યું કે આમણે કર્યું કે આમણે કર્યું એવું વિકલ્પ ના રહ્યો. પણ એવું કરું તો નહીં. હા, હું એ રીતેથી જોઉં તો તમને એટલે ડિસ્ચાર્જ અહંકારની સાથે હું થઈ જાઉં તો કઈ મતલબ નથી. હું થતા જ નથી, કારણ કે હું શુદ્ધાત્મા છું. અંદર છે જે થાય છે ને તે મને કરીને થાય. આ જાણ્યા પછી, હું શુદ્ધાત્મા છું જાણ્યા પછી હું કરીને નથી થતું, મને કરીને થાય છે. મને આમ ને મને તેમ ને મને આવું ને મને તેવું ને મને, અને એમાં મુદ્દો મને ગમ્યું ને મને ના ગમ્યું, અને એક્સપ્રેસ થાય વાણી દ્વારા, અંદર કે બહાર. તે વખતે આપણે સમજી જવાનું એ મને કે એટલે નામદાદીને કહેવાનું, જીતુભાઈને કહેવાનું, રીતિકાને કહેવાનું, સંગીતાને કહેવાનું, કેતનને કહેવાનું. ખ્યાલ આવ્યો? ખ્યાલ મેં તો પણ હોતા નહીં. એટલે આ જે જોવાનો ભાગ છે ને તે શિવજીનું પાછળ જોવાનું, નાક તરફ જોવાનું રહસ્ય આ છે. એટલે બહાર એ પેલા શું કરે છે, બહાર નજર જ નથી કે એમણે શું કર્યું. એટલે આમણે શું કર્યું એ કે ને દ્રષ્ટિમાં જ નથી. અહીંયા શું ભોગવટો આવ્યો એ જ જોવાનું છે. અને આખું જીવન જે છે તે એક ભોગવટાથી બીજા ભોગવટાના સંજોગમાંથી પસાર થવાનું છે. એટલે પછી મારે વિકલ્પ જ ના રહ્યો કે કોણે કર્યું. અહીંયા શું થયું એ મહત્વનું છે, અને કોણ કરે છે આપણને જવાબ આપી દીધો કે કુદરતની સંચાલક શક્તિ જે અહીંયાથી બહાર ગયેલી તે કોઈને કોઈ નિમિત્ત દ્વારા પાછું રિટર્ન કરે છે. અને આપણા ઘરના કોઈ નિમિત્ત બને તો આપણને વધારે અંદરથી કકડાટ થાય, ઝઘડો થાય, અને બહારનું કોઈ થાય તો પછી એની અસર એટલી બધી નથી થતી. ઘરના લોકોની નાની અસર મોટી લાગે, બહારના લોકોની મોટી અસર નાની લાગે. એ છે. એટલે હા, હવે શ્વેતાંબર લોકો તો સીધું જ બતાડે છે, ભગવાનની આમ સીધું જ જોતા બતાડે છે. અને દિગંબર લોકો કહે કે આંખ જ નથી, પણ એનો મતલબ એ છે કે કશું બહાર જોતા નથી, બહાર કશું જોતા નથી. અને ભગવાનની જે શ્વેતાંબરમાં બતાડ્યું છે કે ભગવાન જુએ છે, તો કે જેમ એ મારા ભાણા એ નાનો હતો ને ત્યારે મને કે
મામા બોલ બેટા. સિમંદર સ્વામી આખો દિવસ ખુલ્લી આંખે કરીને શું જુએ એમ કે આંખ બંધ બી નથી કરતા, તમને થાક નથી લાગતો એમ કે. બોલો એ નાનો નાનો એવું પૂછેલું એમ કર્યું. એટલે આખું એની પાછળનું આ રહસ્ય. नहीं बट श्वेतंबर का क्या मीनिंग करेगा? ભગવાન જુએ છે, બસ શું બને છે એને જોયા કરે છે, કોણે કર્યું એ જોતા નથી. અને એમણે શું કીધું તો મહાવીર ભગવાને એમને જે પહેલો જ પ્રસંગ આવ્યો, દીક્ષા લીધી અને પિતાશ્રીના કોઈ મિત્રના ઉદ્યાનમાં એ રહેવા ગયા, એટલે ત્યાં સાધના કરશે એમ કરી એમને આમંત્રણ આપ્યું કે પ્રભુ અહીંયા આવો, તમે બીજે કશે જાવ એના કરતાં અહીંયા વ્યવસ્થા છે મારી એમ, તમારે જે સાધના કરવી હોય તે અહીંયા કરજો એમ. હવે એ તો સાધના કરતા હતા. એ કે મારી કુટિયા મેં કેવું છે ને એ બધું દેખભાળ મારે રાખવાની જરૂરત નથી, કે હું તો આની દેખભાળ કરવા આવ્યો છું, જોવા આવ્યો છું, બહારનું જોવા નથી આવ્યો. એટલે બીજા બધા જે હતા તે બધા એ પાસે આ દ્રષ્ટિ નહોતી ને, એટલે એ સાહેબને જેને શું કહેવાય કમ્પ્લેન કરે, ફરિયાદ કરે કે આ કઈ જાતના સાધુ છે એમ કે પોતાની કુટિયાનું પણ ધ્યાન નથી રાખતા એમ કે આ બધી ગાયો ઘાસ ખાઈ જાય છે એમ કે ખુલ્લું થઈ ગયું એમ કે એમ કે એ હકલતા નથી એમ કે ને બધું એ બધું થયું. એટલે મારી ભગવાન સમજી ગયા કે આપણે મુક્ત વિહારી, આપણે મુક્તિ માટે ઘર છોડ્યું કે હવે આ બંધનમાં ક્યાંથી કોઈ આપણને કંટ્રોલ કરે, આમ કરો આમ નહીં કરો એમ કે. અને તે મને હું જે મારા જે ધ્યાન અંદર જોવા માટે હું નીકળ્યો છું તે તો બધું બહારનું જોવાની વાત કરે કે આ સંભાળો ને પેલું સંભાળો, કે આપણને નહીં ફાવે. એટલે પછી એ પહેલાં જ આ સંજોગ પછી એમણે નક્કી કર્યું કોઈની પણ માલિકીની જગા પર આપણે ધ્યાન કે સાધના કરવી નહીં, કોઈની એ માલિકીની, કારણ કે એની માલિકીની હોય એટલે એમની મરજી ચડાવે આપણા પર. અને એક કંઈક એવો પ્રસંગ પણ બતાડે છે કે એક તો ગુસ્સામાં એમને મારવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તો તે વખતે પાછળથી ઇન્દ્ર મહારાજ આવીને એમને રોકે છે. અને પછી ભગવાન નીકળતા હતા ત્યાંથી વિહાર કરીને, તો ઇન્દ્ર મહારાજે કીધું પ્રભુ હવે દેવોને અભિજ્ઞાન હોય છે એવું કહે છે, ભગવાને પણ હતું. દેવો ઇન્દ્ર મહારાજે એમ કીધું પ્રભુ આગળ તમને વધારે ઉપસર્ગો આવવાના છે તો હું તમારા રક્ષણમાં આવું એમ કે તમારા રક્ષણમાં આવું. તો મહાવીર ભગવાને એમ કીધું હવે હું છું અને આ વર્ધમાન છે, ત્રીજું કોઈ છે જ નહીં, બીજા જે છે તે વર્ધમાન જ છે એમ કે જે વર્ધમાન બહાર ગયેલા અને એમના નિમિત્તે કે એમના થકી જે પણ લોકોને દુઃખ કે જે કંઈ થયું તે પાછું રિટર્ન થશે વર્ધમાનને. તેમાં કોણ કોનું રક્ષણ કરશે, કોનું રક્ષણ કરશે? હું જ છું. તો પછી ખ્યાલ આવ્યો? અને પછી બહુ બધું મર્મ છે જબરજસ્ત. એટલે પછી નીકળી ગયા. અહીંયા વાત આપણે સમજીએ કે શું જોવાનું, અને આ રીતે આપણને ખબર પડે કે આપણો ઉપયોગ ક્યાં હોવો ઘટે. આ કર્યું ને તે કર્યું ને અહીંયા ગયા ને ત્યાં ગયા ને. પછી બીજું કે ભગવાન એમ કે 6 થી 8 ફૂટ એટલું જ જોતા હતા, આગળ જોતા નહોતા. તો કે એનું શું રહસ્ય છે? આપણે વિચાર કરીએ કે પાછળ જોવું એનો મતલબ શું થાય? પાછળનું જોવું, ભૂતકાળ જોવું. ભૂતકાળ ગયો, ભૂતકાળમાં જે ભોગવવાનું હતું તે ભોગવાઈ ગયું. હવે એમાંથી જે લેસન લઈને
જે શીખ લઈને આગળ વધવાનું છે ત્યાં આગળ વધવાનું છે. બીજું 25 ફૂટે નથી જોવાનું, 50 ફૂટે તો જોવાનું જ નથી, આગળનું કશું જોવાનું નથી. જે છે તેમ કે 6 થી 8 ફૂટ જેટલું જ જોવાનું. એટલે શું તો કે વર્તમાનમાં શું બને છે ને એના પર જ ઉપયોગ રાખો. કારણ કે જે 25 ફૂટ દૂર છે તે 6 ફૂટના અંતરે આવશે, પણ એ ત્યારે આવશે. હમણાં તો 6 ફૂટના અંતરે શું છે એ સમજવાની જરૂરત છે. ખ્યાલ આવ્યો? હવે એના પરથી આપણે આ તો આપણે અનુમાનથી કહીએ છીએ કે મહારાજ સાહેબ જે અમુક સંપ્રદાયમાં ઓઘો રાખે છે કે કોઈ જીવ આવી નહીં જાય. હવે એ ઓઘો રાખે એટલે એનો ઉપયોગ ક્યાં હોય? 15 ફૂટ દૂર હોય કે 2-5 ફૂટ દૂર હોય? ખબર પડી? એટલે વર્તમાનમાં તમારાથી કોઈને દુઃખ નથી થતું એનો ઉપયોગ રાખવાનો છે. વર્તમાનમાં તમે શું કરો છો એના પર ધ્યાન રાખો છો, તમારી જોડે શું થાય છે એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. એટલે ધ્યાન એટલે એનો ઉપયોગ રાખવાનો છે કે શું બની રહેલું છે અને એની પાછળ પોતાને શું ભોગવટો આવે છે. ખ્યાલ આવ્યો? હા હા ભાઈ. એટલે આપણે આમ ગોઠવણી કરીએ કે આમ કાલે આમ કરીશું ને આમ પછી આમ કરીશું ને આમ, એ બરાબર છે. પણ એમ કે જો મુખ્ય ઉપયોગ આપણો ક્યાં રાખવાનો કે નાવ અને હિયર. હમણાં અહીંયા શું થઈ રહ્યું છે, એટલે શું થવામાં કે અંદર શું ભોગવટો આવી રહેલો છે. જે કોઈ નિમિત્ત હોય ત્યાં નામધારીનું જ પ્રતિબિંબ છે, રિફ્લેક્શન છે. કારણ કે એના વગર કોઈ કનેક્શન જ નથી. એ હોય તો જ મળે, એ હોય તો જ કરી આપે. आपको लगता है वो पार्थ है, वो मानते कि मैं पार्थ हूँ, लेकिन आप देखेंगे, मानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे कि वो प्रीति का ही है. तो उनके साथ कैसे रहेंगे? बड़े प्यार से, ध्यान से संभाल के रहेंगे ना. हम खुद के साथ ऐसे ही रहते हैं. એટલે આ રીતે આપણું આખું જીવન જાય. જેમની સાથે વ્યવહાર घर पर गए, मम्मी मानती है मैं मम्मी हूँ, पापा तो प्रत्युष है, तो सभी में आप प्रीति का ही देखेंगे. सभी के साथ आपका जीवन व्यवहार अपने आप बैलेंस हो जाएगा. संजोग के धक्के से कुछ भी हो सकता है, लेकिन आखिर में वो मैं ही हूँ. तो मेरा सब करेक्शन बैलेंस फर्स्ट क्लास आ जाता है. बोलो. એટલે આ રીતે આખી આપણને આ સમજણ કે આપણને એમ કેટલી વખત એમ થાય ને કે ભગવાનને તો અવધિ જ્ઞાન હતું એટલે એમને તો ખબર પડી જવી જોઈએ કે આગળ શું આવવાનું. પણ જો આગળ જોવા જાય તો વર્તમાન ચૂકી જાય. એટલે હમણાં શું થઈ રહેલું છે ત્યાં, અને વર્તમાન યોગ એ જ પ્રગટ યોગ છે અને એ જ હાજર યોગ છે. અને એ પૂરો કરવાનો. એને એમાંથી નીકળવાનું છે, એની અસરમાંથી નીકળવાનું, એના ભોગવટાની અસરમાંથી નીકળવાનું. બોલો. બરોબર है, पीछे पड़ना पड़ेगा. વન્ડરફુલ. એટલે આપણે કારનો વિચાર કરીએ, બીજું બધું સામાન્ય રીતે કરીએ, પણ આપણું ધ્યાન બધું હમણાં અહીંયા રાખવાનું છે. બીજું બધું લોકો કહે એટલે આપણે, કારણ કે સમાજમાં છીએ, બધા લોકો જોડે રહીએ એટલે આમ નથી કર્યું, આમ નથી કર્યું, તમારે આમ કરવું જોઈએ, આમ કેમ નથી કરતા, આમ કરવું જોઈએ, પેલું આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો, પેલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો, ભવિષ્યનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, આપણે કરીએ. અને એમાંય આપણે આ વ્યવસ્થિત છે કરીને કરીએ ને રાખીએ. અને એના લીધે તમે જ્યારે તમારું બધું ફોકસ વર્તમાનમાં હોય એટલે વર્તમાનમાં આવતી અસરમાં તમે આવતા નથી. એટલે વર્તમાનની દિવ્યતા તમને સહેજે રહી. શું દિવ્યતા? શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ રહ્યા તે, મુક્ત ભાવે રહ્યા તે, છૂટા થઈને રહ્યા તે, અતિન્દ્રિય જ્ઞાને રહ્યા તે,
વર્તમાનમાં ઇન્દ્રિય જ્ઞાનનો ભોગવટો આવે, પણ એ નામધારીનો છે. જે બરુ ખોસ્યા તે વર્ધમાન સ્વામીનો હિસાબ હતો, વર્ધમાન સ્વામીનો ભોગવટો હતો, મારો મહાવીર ભગવાનનો નહોતો. એટલે મારો શુદ્ધાત્માનો નહોતો. બોલો. હવે એટલા માટે આપણે છે ને બે કામ રહીશ કે બે, એક વ્યવહારના ભાગમાં અને નિશ્ચયના ભાગમાં. નિશ્ચયના ભાગમાં આ સમજણથી આપણે રહીએ સ્વસ્થ, અસરમુક્ત, કાયમ પ્રસન્ન ભાવે. અને વ્યવહારમાં જે બધા રહેતા હોય એ રીતે કપડાં પહેરો, જે બધું જે ખાવા પીવા, જે બધું કરતા હોય એ રાખ. એટલે વ્યવહાર સચવાઈ ગયો અને આપણો મોક્ષ સચવાઈ ગયો. નિશ્ચય સચવાય એટલે મોક્ષ સચવાઈ ગયો. જગતની પાસે આ દ્રષ્ટિ જ નથી. એ ક્રિયાને જ નિશ્ચયનું પરિણામ અને નિશ્ચયનો હેતુ માને છે. હવે આપણને એ દ્રષ્ટિ મળી ગઈ એટલે આપણે શું કહીએ કે આખો મોક્ષ માર્ગ અવિરત, નોન સ્ટોપ, કન્ટિન્યુઅસ વ્યવહાર ચોખ્ખો કર્યા કરવાનો માર્ગ છે. એટલે વ્યવહાર ચોખ્ખો કરવાનો છે. તો વ્યવહાર ક્યાં છે? ભવિષ્યમાં છે કે હમણાં અહીંયા છે? કે હમણાં અહીંયા છે. એટલે એના પર આપણું ફોકસ હોય તો આપણને ખબર પડે ક્યાં કેવી ભૂલ થાય છે. અને આપણે એ ભૂલોને બેઠા બેઠા જોયા કરીએ, ઓળખ્યા કરીએ, સમજ્યા કરીએ અને ધોયા કરીએ. એટલે ચા સારી બનાવી છે એટલે એનું ફળ બી સારું લાગે. ઓલવેઝ. અને ચામાં ઘૂસવા નહીં, ન બની તો નહોતી બની, એવી થઈ છે. આપણને ચા પીવી છે, મળતી નથી. કે ચા પીવી છે અને જેવી જોઈએ એવી મળતી નથી અને નહીં મળી ને એના કારણે ભોગવટો આવ્યો, તે આપણો હિસાબ. પણ એને પકડીને બેસું તો હિસાબ પાછો પૂરો ન થાય. તે હિસાબ, એવી હિસાબ. તે હિસાબ એટલે ચિકાસ વાળો હિસાબ કે હજી આગળ છે. જો ભગવાનનો અભિગ્રહ હતો, કન્ડિશન, શરતો વાળો અભિગ્રહ. 5 માસ અને 25 દિવસે પૂરો થયો. સ્વાભાવિક. એમણે કોઈને વાત લીક નહોતી કરી. મારો અભિગ્રહ શું છે કોઈને કીધું નથી. સમજો મારો આ અભિગ્રહ છે, કંઈક કરો તમે એમ કરીને. ટોટલી કુદરતી રીતે કશું જ. અને એ અભિગ્રહ કુદરતી રીતે વ્યવસ્થિત શક્તિ એટલે દાદા પછી આપણને આ સમજણ મળી એટલે પૂરો થયો 5 માસ ને 25 દિવસે. मैं वो समझदार थे तो अभिग्रह क्यों किया? जब समझ थी, जब अभिग्रह हुआ था या अभिग्रह किया था तब ये समझ नहीं थी. ओके, वही बोल. सही. ऐसा है. सही. આગળ સાધના કાળમાં, આગળ એટલે પૂર્વે, આ બહુ પૂર્વે સાધના કાળમાં આ નક્કી થયેલું કે આપણે જ્યારે સર્વજ્ઞ થઈશું કે દીક્ષા લઈશું ને ત્યારે આ કુદરતનો આ સિદ્ધાંત સમજવા માટે, પાકો કરવા માટે આપણે આવું રાખીશું. અને કેવું કોમ્પ્લિકેટેડ. અમે ગણતરી કરી, ઓલમોસ્ટ 7 શરતો હતી. રાજકન્યાને માથે વાળ નહીં, બેડીમાં, પગમાં બેડી, પગ ઉમરાની બહાર, એક પગ અને એક પગ ઉમરાની અંદર. પછી 3 દિવસનું તપ કરેલું હોવું જોઈએ. રાજકન્યા તપ કરતા હશે, બરાબર?
પછી આહારમાં ભિક્ષામાં બાકડા એટલે બાકડા અડદના, અને 7મું આંખમાં આંસુ. બોલો, આ 7 કન્ડિશન, શરતો સ્વાભાવિક કુદરતી રીતે 5 માસ અને 25 દિવસે પૂરું થયું અને ભગવાનનો અભિગ્રહ પૂરો થયો, એ તૂટ્યો. तो पुरावा वो भी पुण्य की वजह से हुआ. પુરાવો કે આ પુરાવો પુણ્ય, પણ એનો કાળ જે હતો ને, हम्म. જે અભિગ્રહ કર્યો હતો, इथं बसा, इथं बसा, इथं बसा, इथं बसा. आता मला मराठीमध्ये तर नाही, पण मी गुजरातीमध्ये आणि हिंदीमध्ये बोलतो. हिंदीमध्ये बोला. वो पुरावा हाँ. नहीं, वो जो तय किया था अभिग्रह कि ऐसा करके जब मैं दीक्षा लूंगा तो ये शर्त होगी तभी मैं पहला दीक्षा लूंगा. हाँ. तो वो जो कर्ता भाव से हम्म. शर्त की थी, उसका परिणाम 5 मास और 25 दिन तक खाना नहीं मिला. तुम्हें तो इतना जमा के, हाँ, मैंने तो इतना जमा के. बात सही है, लेकिन वो दौड़ा होते धोते याद है. वो तो महावीर भगवान थे ना, और होते तो चरम मैं भी महावीर धोते चरम था. शरीर था. चरम शरीर, हमारा आपका चरम शरीर है नहीं. अंदर पर. चरम शरीर अभी है नहीं, अंदर है, उसको क्या क्या देखने अच्छा, का. अभी जो किया वो भूल डालू क्या? अभी बेटा घुसना ही है. आप याद तो है. आप देखते जाएंगे, जो याद आएगा उसको बात सही है, आप देखते जाओगे यानी समझते जाओगे, और हमारा व्यवहार जो ऐसा फैला के बैठे हैं ना, हाँ, हाँ. वो दिन ब दिन संक्षिप्त होते जाता है, संक्षिप्त होते जाता है. अभी हमें जो दृष्टि मिली है उससे व्यवहार, उसको क्या बोले, संक्षिप्त होता जाता है. सिकुड़ा जाता है. जैसे जैसे हम संभव से निपटारा करते हैं, क्योंकि खाली होता जाता है, भरता नहीं है. नया भर नहीं रहा है, भरा हुआ खाली होता जाता है, तो वो छोटा छोटा होता जाता है. और वो जब एक सीमा में आ जाएगा, वो सीमा कौन सी है, संख्या में आ जाएगा व्यवहार. संयोग का होना वो संख्या में आ जाएगा, तो वो स्वाभाविक आखिर का जन्म होगा, और वो महाविजय क्षेत्र में होगा, प्रभु के पास. शायद वो पूरा करने के लिए ऐसा पैर मिला. नहीं तो इतना बड़ा था, मैं दोनों पैर चलते थे तो कहाँ पहुंचा. है बात सही है. Automatic कम सब हो गया, automatic. सब संयोग ऐसा है ना. ज्ञान है, दृष्टि है, तो पैर है, फिर भी वो संक्षिप्त होता जाएगा. हाँ, वो भी एक बात. और ये तो एक भुगतान है इसके कारण. फिर भी आप तो बड़े बड़े अच्छा है, आप इतने इमोबाइल भी नहीं हो. हाँ, मोबिलिटी की लिमिटेशन है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. तो ये बात है. अभी आप कहेंगे कि हमारे ये सब इच्छाओं का क्या होगा. पूरे भगवान की इतनी कॉम्प्लिकेटेड इच्छा, शर्तों वाली, वो भी बहुत अच्छी है. वो 5 मास और 25 दिन में खत्म हुआ, तो शायद हमारे 5 साल लगेगा, कौन होगा? और नहीं तो 5 जन्म लगेंगे, लेकिन अनंत जन्म नहीं लगेंगे. लेकिन अगर हम उलझते रहे, शिकायत करते रहे, झगड़ते रहे, किचकिच करते रहे, तो फिर वो उसका कोई हिसाब नहीं है. वो जब हिसाब तो हिसाब ही है, कर्म का हिसाब तो हिसाब ही है, लेकिन उसको हम इस तरह से चिकनाहट वाला बना देते हैं, भारी बना देते हैं. तो भारी मत बनाओ, समझदारी से, समाधान से उसका निपटारा करो. ऐसा है, बहुत मजा आता है. तो वर्तमान और वर्तमान में रहने का कारण और कैसे वर्तमान में रहा जाए, वही समझ लेना है.
और बेबी ने कहा कि मैं ये दिन आऊंगी, 24 तारीख थी, जो भी महीना बताया, तो अंदर से नोटेड। तब की परिस्थिति, संजोग, व्यवस्थित क्या है मालूम है आपको? और अगर कोई ऐसा संजोग बन गया और वो नहीं आ पाती है तो आप शिकायत करेंगे, अरे आपने कहा था 25 तारीख को आओगी, अभी क्या हो गया? हम सब यहाँ तैयारी करके रखे थे। ख्याल में है? लेकिन एक मेरी बात बताता हूँ, ये ज्ञान के पहले अगर किसी ने मुझे टाइम दिया है, मैं 3 बजे आऊँगा करके बताया, तो मैं 2:45 को सब मेरी दुकान बंद कर देता हूँ और बैठ जाता हूँ। तो उन्होंने कहा 3 बजे आएंगे, तो उनके लिए हमें रेडी होना चाहिए। 4 बज गए, 5 बज गए, मैं ऐसे ही भूत जैसा बैठा रहा, फिर तो मैं थक गया। ये पहले की बात है। और फिर थोड़ा गुस्सा भी आया, कमाल के लोग हैं, अरे कुछ नहीं तो फ़ोन तो करना चाहिए। दूसरे दिन सुबह में उनका फ़ोन आया, बोलते अरे मैं भूल ही गया। बहुत अच्छा। मेरा तो 2 घंटा तो बिगड़ा, लेकिन वो 2 घंटा जो बिगड़ा उसकी असर में मेरा कितने घंटे बिगड़े। यहाँ लोग करते हैं, बता के भी आते नहीं, अरे नहीं आना है तो बता दो ना कि मैं नहीं आ रहा हूँ करके। तो वो तो बड़ी सहजता से बोलता, अरे मैं तो भूल ही गया। क्या करेंगे? किसको डांटना है? आप कितना भी धुआं निकालो, बोले अरे मैं भूल गया तो मैं क्या करूं? अगले बराबर है, क्या करेंगे? अभी मैंने किसी को टाइम दिया, मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। अगर मैंने किसी को 10 बजे का टाइम दिया है ना, मैं 9:45 बजे पहुँचता हूँ। एक मेरी अंदर से एक ऐसा क्या बोलता है, एक आयोजन होता है कि अगर हमने 10 बजे का टाइम दिया है तो हमें किसी को क्या बोले, राह देखने नहीं पड़े, ऐसा रखना चाहिए। तो इसीलिए मैं भी लोगों से ऐसी अपेक्षा करता था और कभी होता नहीं था। तो एक बार तो ऐसा हो गया था, और तभी ये ज्ञान की समझ नहीं थी, व्यवस्थित क्या है वो सब जानते नहीं थे। ज्ञान के बाद बहुत मज़ा आने लगी। कोई कहता है ना कि मैं कल 10 बजे आ रहा हूँ, तो मुझे अंदर तुरंत बोलते हैं ना, चक्कर चल जाता है। उनको संजोग व्यवस्थित 10 बजे लाएंगे तो आएंगे, हमें उसका टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपना काम चालू रखो, वो आए तो अपना काम दुकान बंद कर देना, वो आए तो दुकान बंद कर देना। तब से क्या हो गया कि किसी ने अगर टाइम दिया है तो मैं देखता हूँ कि व्यवस्थित उनको लाया कि नहीं लाता है। लाए तो बराबर है, नहीं लाए वो भी बराबर है। बस इतना है तो मैं तो बादशाह है। नहीं, लेकिन ये ज्ञान के परिणाम से हुआ समाधान टोटल। और जैसे भी कोई बोलते हैं ना कि मैं 3 बजे आ रहा हूँ, तो मेरे अंदर एक चक्कर चल ही जाता है, व्यवस्थित लाएगा तो वो आएंगे। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ व्यवस्थित लाएंगे तो आप आना करके, ऐसा नहीं बोलता। बोला आ जाना, हम आपकी राह देखेंगे, ऐसा करें। वो व्यवहार है, व्यवहार में ऐसा बोलते हैं। व्यवहार। लेकिन निश्चय की बात, व्यवहार में बोलेंगे तो व्यवहार बिगड़ सकता है। बोलने की जरूरत नहीं है, समझना है। आ जाना, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार राह देखूंगा, और अंदर से कभी किसी की राह नहीं देखनी। अभी समझ में आया कि दादा कहते थे हमने कभी किसी की राह सारी जिंदगी में देखी ही नहीं। माय गॉड, अभी आप हमारे तो जिंदगी उसका- राह नहीं करते। हाँ, सारी अभी भी जिंदगी लगा राह- कौन आएगा नीचे देखो, अरे आएगा जो हाँ, आने वाला। जो आएंगे आने वाले हैं। कल शाम तक बरोबर तैयारी कर दी, अभी आने के पहले तक बरोबर कर दिया, अभी शाम बैठ जाना है। नहीं, बात सही है, लेकिन ऐसा है, बड़ा मजा आएगा। और जो करना है उसके लिए जो चीज जरूरी है वो कर दो। वो काम कर दो, और वो करने के बाद सोच होके बैठ जाओ। अभी कुदरत को काम करने दो। वो नहीं कर इसीलिए क्या कहते हैं, आपको जो चाहिए, कोई इच्छा है, प्रबल इच्छा है, तो वो भगवान के पास रखो, दादा के पास रखो,
प्रार्थना करो, शक्ति मांगो, और उसके लिए जो योग्य प्रयत्न है वो करते रहो। वो मेरे नसीब में होगा तो होगा, वो पहले से नहीं बोलना, हाँ, वो ही बोल रहे हैं। वो गलत है। क्योंकि आपके प्रयत्न में कुछ भी कमी आ जाएगी, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, और उसके लिए आप ही जिम्मेदार ठहराओगे। तो ये गलती नहीं करना। जीवन व्यवहार इतना आसान हो गया। बोलो, देखो वो हिंदी मूवी का एक गाना है, क्या है? माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, मैं नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं रहता है। पुणे आले एक आपला पोरा आहे. हा हा कोण? अच्छा, पोरीच्या पोरा. बरोबर. कोणती मुलगीच्या पोरा? दर्शना हाँ ती दुसरी होती ती रूपा खटकी मुलगी बोलते, क्या बोलते हैं? छोटी छोटी धाकटी. हाँ, धाकटी, धाकटी. तो मेरा वोकैबुलरी आती है अभी यहाँ. अच्छा, क्या करते हो आप? मैं तो मगरपट्टनम का जॉब के लिए. अच्छा, क्या पढ़ाई की? MBA किसमें? सेल्स एंड मार्केटिंग. सेल्स एंड मार्केटिंग. वेरी गुड, बहुत अच्छा. शादी हो गई? उम्र कितनी हो गई? 32. अच्छा, किसी को राह दिखा रहे हो, यानी वेट करवा रहे हो? नहीं, तो हो नहीं रहा. हाँ, हो नहीं रहा. हो नहीं रहा. क्यों नहीं हो रहा है? आधी काही करत नाही? अजिबात ते पूर्ण प्रयत्न करते, सापडत नाहीये. ऐसा है ना, लोगों की शादी तो कितनी जल्दी हो जाती है, 20-25 साल में हो ही जाती है, और लड़के हैं तो शायद 25, 27, 28 में हो जाता है. लेकिन ऐसा ये जो आगे जाता है ना, उसके लिए वो बहनें हैं ना, वो जया पार्वती व्रत रखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, क्या करते हैं? आपने कुछ नहीं किया. अच्छा, काय करतात? बोला ना, म्हणा ना काय. लग्नासाठी काय काय व्रत? लग्नासाठी चांगले पती मिळाव्यासाठी काय करतात? अरुणा करे मग गुजरातीમાં. मराठीमध्ये काय करतात? अरुणा करतात. पोरासाठी काय आहे? पोरीसाठी तर किती आहे. लेकिन वो पोरी के कारण वो बच्चे को मिल जाता है, ऐसा लड़के को नहीं, वो उसके योग्य होता है तो मिल जाता है. ऐसा है. बोलो, श्रीमंत तो मालूम है, कभी कभी करते हो? हाँ, करता हूँ. कभी ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो बाइक राइडिंग. अच्छा, कितनी बार करते हो? जब याद आएगा तो ऐसा काम का ही प्रेशर इतना रहता है. देखो, बहुत ही ये बात सही है. हाँ, बोलते हो भगवान को याद आएंगे तो मैं करूँगा. तो ये भगवान को तो ऐसा बोलते हो, कितना सारा काम है, तो इतने नाम का है राहुल. और राहुल का नंबर कब आएगा? भगवान बोलते देखता हूँ मैं इतने सारे में, तो फिर राहुल की याद आ गई तो उनको कुछ कर दूंगा. समझ में आया? लेकिन आप रोज उनको याद करते हैं ना, तो बोलते अरे पुराण रोज मला याद करता है, तो अभी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा उनके लिए. समझ में आया? ये बात है. तो उनको रोज याद करना है आपको, रोज प्रार्थना करो, तेव्हा माझं लगीन केव्हा होणार, मी वाट पाहतो. राह देख रहे हो? नहीं देखते हो? देखो, तो नहीं देखते हैं ना, तो भगवान को तो इसको जल्दी नहीं है, तो अभी जाने दो, थोड़ा टाइम जाने दो. ख्याल में आया? ये जो प्रकृति है ना, ये प्रकृति हमारा ही प्रोजेक्शन है. प्रोजेक्शन यानी हमारा ही रिफ्लेक्शन है, हमारा आंतरिक प्रतिबिंब है. आप बोलते ठीक है चलेगा, तो काय नाही, आणि ती गरज नाही आता.
हम बाद में देखेंगे। ये बोलते इनको बोल करे देना, जल्दी उनको भेज दो। समझ में है? इसलिए हमें गरज बताना पड़ता है, पीछे पड़ना चाहिए भगवान को। रोज कॉल करो, रोज मैसेज करो, है ना। ये तो हम इसमें करते हैं, अपने जीवन व्यवहार में करते हैं, लेकिन ऐसा दीवाना ऐसा करना है ना भाई जी, तो करा वो भी करते हैं, आगे बात करो। नहीं, वो नहीं करते ना, कहाँ करते? देखो ना, कभी करता है, कभी नहीं कहता, नहीं करता है, इसीलिए तो हंसता है कि नहीं करता हूँ। पता चलता है, हाँ, दिन रात करता है, नहीं करता है वो बताए ना, खूब इतने काम में मैं भूल जाता हूँ। वो नहीं भूलता बाबा, वो तो तुम क्या पूछे वो भूल जाता है, त्रिमंत्र भूलता। उसी की बात करता हूँ ना, वही तो करना है। मैं तो समझा उसको जो शादी करना वो याद करे बाहर। नहीं, वो त्रिमंत्र उसके लिए तो करने का है। अच्छा, हाँ, संसार विघ्न निवारक निष्पक्षपाती दादा भगवान त्रिमंत्र करके दिया है हमें। वो भी संसार की उलझन है तो उसका समाधान है। देखो, ये तो एक बात है, बताते हैं कि ऐसे ही एक आ गए थे किरणपुर में, बोले कि मेरी शादी होगी, जब होनी होगी तो होगी, मैं क्यों चिंता करूं। वाह क्या ये क्या बात है? क्या उल्टी बात की उन्होंने, गलत बात की। अरे आपकी तो इच्छा तैयारी बतानी है। अरे वो हमारे शादी का और आपके पुत्र से, उन्होंने कहा अब भी क्या, अभी जाओ वो समाधि पर जाके बोलो मेरी शादी का कुछ आयोजन कर दो दादा। आता लई वैताग लोग नहीं, ये लोग भी वैताग लेते बांटते नहीं, वो हंसते रहता है तो क्या समझ गया? आपका डेस्परेशन है ना, तो देवाला काम करेगा, वो काम करना पड़ता है उनको। इसीलिए उनको बोलो 5 बार तो मैं करता हूँ, अभी 15 बार करूँगा, लेकिन आपको मेरी बात सुननी है, लवकर पाठवा। हाँ? नहीं, ऐसा ही है। हकीकत और 6 महीने में उनकी शादी हो गई। रियली, मजाक नहीं करता हूँ। 6 महीने में अभी तो बच्चा भी होगा, बच्चा भी 12वीं में आ गया। बोलो, नहीं ये बात है, ऐसा जो बताया है व्यवहार के लिए। आज दादा भगवान ने जो व्यवहार की समस्या है ना, उसके लिए ये मंत्र दिया और असीम दीदी का रक्षम दीदी करो, मालूम है? वो कभी करते हो? केवा करी? शाम के वक्त जब नवी पूजा करती है कभी कभी, फिर भी देखो ये कभी, फिर वो भगवान भी आपके लिए सोचेंगे कभी। नहीं, ऐसा है बात। एक बात समझ लेंगे ना, तो ऑफिस रोज जाते नहीं जाते, 3 दिन नहीं तो होम फॉर वर्क, वर्क फ्रॉम होम होता है, वो तो है। लेकिन उनकी कंडीशन के मुताबिक आप घर पर काम करते हो ना, वरना तो जाते ही हो ना। ऑफिस का कमिटमेंट है तो लाइफ का भी कमिटमेंट के लिए थोड़ा कर दो ना। हाँ? उसका कमिटमेंट है, आपको प्रमोशन मिलेगा, टाइम पर सैलरी मिलेगी, सब कुछ अच्छा होगा। तो यहाँ भी लाइफ के लिए भी आप इतना ही कर रहे हैं, वो ज़्यादा नहीं है, करना आता है। हाँ, बोलो ऐसा है, बहुत मजा है, जीवन सीधा सरल आसान हो गया। काय डोक्यावर बोझा घेऊन नहीं फिरायचं, सर पे कोई बोझा रखने की जरूरत ही नहीं है। हमें जरूरी है, आवश्यक है, आप जाके हर रोज घंटी बजाओ। घर में मंदिर रखा है, घंटी रखी है, घंटी बजाते हो? नहीं, वो मम्मी बजाती है, वो भगवान को सुनाने के लिए करते हैं, टंग 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 टंग, मेरी आवाज सुनो, ऐसा नहीं बोलते। ऐसा है, सचमुच वो 6 महीने में उनकी शादी हो गई। यानी ये जो दादा भगवान ने मंत्री मंत्र दिया है, असीम जयकार दिया है और प्रार्थना दी है कि ऐसे आप प्रार्थना करो कि जो आपकी इच्छा है वो रखो और जीते रहो, तुमको देना ही है। ये समय की जो समस्या है, समय का जो उलझन है, समय का जो प्रॉब्लम है,
उसका सॉल्यूशन ये त्रिमंत्र असीम निजेदार में दिया है, लेकिन आपको हर रोज रोज करना चाहिए। ऐसा है। ये जो लड़कियां वो जया पार्वती व्रत वगैरह जो रखते हैं, वो बिल्कुल कितने साल तक रखते हैं? वो जया पार्वती व्रत अलोड़ा वगैरह कितना टाइम करते हैं? नहीं होता तब। हाँ, जब तक नहीं होता तब तक। जब तक नहीं होता है तब तक। अच्छा, तो देखो वो जय पार्वती व्रत का मतलब क्या है कि प्रकृति का दोष के कारण, प्रकृति ये हमारा प्रकृति के दोष के कारण ये बाहर की जो प्रकृति है ना, वो हमें सहाय रूप नहीं होती, मदद रूप नहीं होती। अब यहाँ से आप ठीक हो जाएगा ना, तो वो तो देने के लिए तैयार है, भेजने के लिए, लेकिन हमारी गलती है, उसको हमें सुधार लेना है। वो सुधर गई, इतना अच्छा जॉब है, इतनी अच्छी पढ़ाई की, इतना अच्छा जॉब है, तो अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, लेकिन आप बोलते ठीक है आना है तो आना, तो फिर वो बोलते अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। नहीं, एक दिन ऐसा दूसरे दिन बोलेगा आई है, वो भी क्या करेगा? नहीं, लेकिन वो क्या है, जो अब तक बोला ठीक है, तो वो बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, मैं आती हूँ, रुके, हाँ कर दो। फिर आपने उनको रोक के रखा, तो वो आपको रुको ठीक है ऐसा कर, ऐसा ही है। ये दादा भगवान ने क्या बताया, हम ही हमारे लिए संपूर्ण जिम्मेदार है, कोई भगवान नहीं, कोई व्यक्ति नहीं माँ बाप, वो तो मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन हम जो गलतियां करते रहते हैं उसी का फल हमें मिलता है। जो अच्छा किया उसका भी अच्छा फल मिलता है, लेकिन जो गड़बड़ भी की तो उसका भी परिणाम आता है। तो वो सब गड़बड़ को निकाल देना है। ऐसा है। भगवान कहाँ रहते हैं? सभी के अंदर सभी के अंदर सिद्धांत का भगवान। अच्छा, तो फिर वो विधि करते हो किताब वाली, बहुत मुश्किल से, तो बहुत मुश्किल से काम पर जाते हैं ना, काम पर आसान से जाते हैं, तो इतनी 15 मिनट की विधि को बहुत मुश्किल लगता है। एक विधि का $100 जो तो करता है। तो आप अमेरिका क्यों चले गए? मेरे को डॉलर ही याद आता है। अच्छा जी, 100 रुपये में तो क्या होना है? नहीं बात खराब कर रहे हो, लेकिन समझ में आया। ज्ञान का मतलब क्या है? भगवान के साथ शादी हो गई, भगवान के साथ शादी होने के बाद उनकी आराधना नहीं करनी चाहिए। वो विधि में आराधना, जो क्रिया नहीं है, क्रियाकांड नहीं किया है। ज्ञान मिलने के बाद ज्ञान कांड ही होता है और ज्ञान कांड ही रहता है। अवस्था अपनी जगह पे है, प्राकृतिक है, समझ में आया? लेकिन वो प्रकृति में सही जवाब क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि यहाँ से हमने गलत आवाज़ फेंकी है, इसीलिए सही आवाज़ नहीं आती है। वो एको बोलते हैं ना, प्रतिध्वनि, वो हमारी प्रतिध्वनि है। तो अभी जो ध्वनि फेंकी थी तो उसकी प्रतिध्वनि आएगी, लेकिन आप सही ध्वनि फेंको। 6 महीना એને લગીન હોणार, पण जर ते असं केलं मग नहीं कर गए, डॉक्टर ने गोली खाने दी और वो गोली नहीं खाएगा तो कैसे सेहत अच्छी होगी? क्या वो उसके पीछे पड़ी, उसको क्या फल मिलेगा? आजीची जबाबदारी आहे नातूला योग्य मार्गदर्शन द्यायचं। आता ज्ञान मिळाल्यानंतर काय? अरे लेकिन उधर के भगवान के साथ शादी की थी, यहाँ अभी इधर की शादी बाकी है ना। करो, हाँ, फोन तो करना पड़ेगा। लावा पैसे लगे।
आप चालू रखें लेकिन वो नहीं करता है। हाँ तो करेंगे भाई। आपका फोन चार्ज होगा, उनका फोन को चार्ज उनको ही करना पड़ेगा चार्जिंग, और में लगाना पड़ेगा। बोला हम तो तक बोलते रहे, अभी आप कुछ पूछो। हाँ हाँ सुना तो बन गया। आपल्याला काही विचारायचं मग विचारा, नाहीतरी इकडे तर अशीच गोष्टी होती રહેતી है। આ જે પદ હમણાં જે આપણે ગાયું ને એમાં ઓલિયાની ફકીરી ને સ્થૂળ ક્રિયાકાંડ નહીં એ જરા એટલે ઓલિયાની જે ફકીરી છે ને તેમાં કોઈ ક્રિયા સ્વરૂપે નથી હોતું એ। ઓલિયા એમની મસ્તીમાં જ હોય, ખબર પડી? એ એમને જે શું કહેવાય ભગવાનની ખિદમત કરી છે ને એમણે, એટલે એ અપેક્ષાએ કીધું છે। દાદાએ જે એમની અંદરના જોડે જે તાર જોડેલો છે ને તે એમનો કોઈ એને શું કહેવાય નિત્યક્રમ નથી એમનો। સહજ સહજ છે। હા સહજ, અને આપણે કશું ઠેકાણું નથી ને સહજ કરીને રહીએ, એ ખોટું કહેવાય કે સારું કહેવાય? હાવ ખોટું કહેવાય। એને શું કહેવાય डिसिप्लिन में आने के बाद सहज हुए। अभी तो डिसिप्लिन बाकी है, और हम सहजता की बात करें तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं ठीक है, बहुत अच्छा है, बोलिए। तो मेरा सुबह में धक्का लगा था ना विधि करते करते, वो इतना चला, काफी चला नहीं? क्या लगा? सुबह में विधि करते करते मेरा धक्का चला था, वो धक्का इधर चला अभी इतना। अभी आगे आपको धक्का मानेंगे, पूछेंगे तो फिर आगे बात। बोलिए। हाँ छुट्टी आया है, सैटरडे संडे, वेरी गुड, नॉट इवन वर्क फ्रॉम होम। It is 2 days. तो मैनेजर डिसाइड करते हैं कब आना है। तो अच्छा, लेकिन अदरवाइज इवन फ्री होता है। Very good. हा मी कामात आहे, नंतर फोन करतो। बोला संगीताताई काहीतरी म्हणा, काहीतरी विचारा। उठना तो चाहिए ना, उठेंगे तो सत्संग होता है। हम स्वाध्याय करते हैं, नहीं आपने वो बोला ना डिसिप्लिन, वो जरा थोड़ा मैंने डिसिप्लिन। ये अपना वो लीगल लैंग्वेज में नहीं काम अपना। काम काम का तो डिसिप्लिन है ना आपका, हाँ, उनका भी घर के काम का डिसिप्लिन है ही। दिन में 2 बार झाड़ू मारने का तो झाड़ू मारते ही है। बोले जिधर कुछ कचरा नहीं है, नहीं वो मारने का होता है तो कर ही लेते हैं। हम वहाँ महीने में कभी 1 बार मारते हैं झाड़ू, हम ये 2 बार लगाते फिर भी नहीं। समाधानी नहीं। नहीं, वो करते हैं लेकिन बराबर है, वो कैसा डिसिप्लिन है ऐसा, क्योंकि हमें कृपा से ज्ञान मिला है, तो कृपा से ज्ञान मिला इसीलिए हमें ये थोड़ा एक आयोजन पूर्वक का उपयोग के लिए क्या बोले सेटिंग करना है। तो उससे फिर क्या होता है कि हमारा उपयोग बना रहेगा। उपयोग का मतलब क्या है? वापरना, इस्तेमाल करना। क्या इस्तेमाल करना? भगवान का प्रकाश, प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश को हम उपयोग करते हैं देखने के लिए, व्यवहार को। व्यवहार में क्या देखने का? समझने का। क्योंकि जो व्यवहार आता है वो व्यवहार में हम निश्चय भाव से रहे थे,
वो व्यवहार में निश्चय भाव से रहे थे, इसीलिए वो असर करता है। समझ में आया? व्यवहार में मैं संगीता हूँ करके कारण पड़ा था, वो जो भी नाम था एग्जाम्पल देता हूँ, उससे कर्म का बीज पड़ा था। तो वो मैं संगीता हूँ मंदिर का है, उसका मतलब क्या होता है कि जो संगीता व्यवहार है उसको मैं हूँ करके माना था, वो निश्चय का आरोप हुआ था व्यवहार के ऊपर। इसीलिए अब जो व्यवहार आता है परिणाम रूप, उसमें वही पहले का निश्चय मेरेपन से असर करता है। निश्चय वो कैसे हो गया? वो निश्चय तो संगीता बोली तो निश्चय तो नहीं हुआ ना, शुद्धात्मा बोली तो निश्चय होता है। निश्चय का उसको काय एकता रे बाबा, क्या सुना? सुना के जागते हो सोते हो? नहीं, पहले जन्म में भी, लेकिन आपने बोला ना निश्चय उसमें किया था, तो वही तो है, तभी शुद्धात्मा थे, तभी शुद्धात्मा थे। फिर पीछे बताता, अज्ञानता में पहले मैं ही संगीता हूँ करके था ना, वो उसका मतलब क्या है? मैं शुद्धात्मा हूँ मुझे वो निश्चय है, लेकिन मैं संगीता हूँ वो रॉन्ग व्यवहार को निश्चय माना था। मेरा नाम संगीता है वो करेक्ट है, व्यवहार है। तो इसीलिए आज जो परिणाम आते हैं वो परिणाम में मैं संगीता करके नहीं होता है, लेकिन संगीता का जो है उसके अंदर मेरापन आता है। मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी तबीयत, आगे आगे जो संगीता बहन से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी मेरा मेरा होता है। मेरी सांस, मेरी बेटी, समझ में आया? तो वो आगे का निश्चय से गलत निश्चय के कारण व्यवहार में मेरेपन की चिकनाहट है। ख्याल में आया? इसीलिए वो व्यवहार आपको असर करता है, और कोई व्यवहार निश्चय के आरोप बगैर होता नहीं है। अगर वो निश्चय का आरोप नहीं था तो व्यवहार सामान्य रहेगा। समझ में आया? उसका मतलब क्या है? ये सारी दुनिया की जानकारी अगर आपको मिलती है ना, तो उसमें मेरापन कुछ नहीं होता है। दूसरी की बच्ची को कुछ होता ना तो होता है, उसमें क्या है ऐसा करके, लेकिन खुद की बच्ची को कुछ हो गया तो अभी दौड़ के जाएंगे। नहीं जाने का बात नहीं करता हूँ, असर होती है उसकी बात करते हैं। वो जो व्यवहार ही है, वो देखने का मतलब और देखने का कारण क्या है कि शुद्धात्मा दृष्टि से भगवान के प्रकाश में, प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश में अब जो ये परिणाम आते हैं मेरेपन का, जो आपको भुगतान नहीं है, भुगतने वाले आप नहीं हो, फिर भी माना जाता है, उसकी असर आती है। तो उसको देखकर समझ लेना है कि ये व्यवहार है, वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ और मैं देखने वाला हूँ। इसीलिए देख देख कर समझ लेना है कि ये व्यवहार है, क्योंकि मैं निश्चय हूँ, यानी वो मेरे से अलग है, मैं अलग हूँ। रिलेटिव है, मैं रियल हूँ। यानी संगीता रिलेटिव है, संगीता अलग है, मैं शुद्धात्मा हूँ। संगीता रिलेटिव है, मैं शुद्धात्मा, मैं रियल हूँ। संगीता टेम्पररी है, मैं शुद्धात्मा परमानेंट। ख्याल में है? तो आप निश्चय प्राप्त हुआ है, लेकिन व्यवहार जब सामने आता है तो वो व्यवहार के पक्ष में निश्चय काम करता है। उसका मतलब क्या है? अगर आप शुद्धात्मा है तो शुद्धात्मा का द्रव्य वो आपका है, शुद्धात्मा के द्रव्य का गुण वो आपका है, दिखना करना, और वो गुणों की अवस्था वो आपकी है। लेकिन अब मेरापन कहाँ होता है? संगीता के प्रति होता है। तो तुरंत हमें समझ लेना है, देखेंगे तो समझेंगे। जैसे वो
वो वटाने वटाने को खोलने के लिए करते ना, क्या करते? बोलते हाँ, तो बातें करते 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 थे। शुरुआत में ठीक वो कटोरी में दाने डालते थे, थोड़ी देर में बातों में इतने उलझ गए कि वो दाने को नीचे डालने लगे और छिलके को कटोरी में डालने लगे। ओ चेतन भाई आगे बोला, अरे क्या करते हो? अरे दाने खोल रही हूँ। ये क्या हो गया? तो कहीं खो गए थे तब ऐसा हुआ ना। ऐसे लोग खो जाते हैं। एक खो जाने का उदाहरण छोटा सा देता हूँ। हम कहीं गए थे और वहाँ पर वो महात्मा हमें पिकअप करने के लिए आए थे। उनका घर 15 मिनट से 20 मिनट दूरी पर था, बराबर है। एयरपोर्ट पर लेने आए। जब हम गाड़ी वो चलाने लगे, बातें करने लगे, एग्जिट भूल गए, चूक गए। और अमेरिका में क्या एग्जिट चूक गए ना, तो भी नेक्स्ट एग्जिट बोले, नेक्स्ट एग्जिट पे मत, मेरे साथ बात मत करो, मुझे ड्राइविंग में ध्यान देने दो। बोला हाँ ठीक है। फिर ऐसा करके बेटा, फिर उन्होंने बात फिर से शुरू की, फिर से एग्जिट चली गई। वहां घर हम जो 20 मिनट में पहुंचने वाले थे, 2 घंटे के बाद पहुंचे। तो उनके घर वाले बताए, कहाँ गए थे? यही तो नजदीक है एयरपोर्ट। बोले एग्जिट चूक गया। और फिर जब हम आए ना, फिर जो एग्जिट मिली, वो उसको क्या बोलते हैं वो लोग, कंट्री रोड, यानी अंदर का रास्ता, हाईवे नहीं। सर्विस रोड। हाँ नहीं, अंदर का रास्ता, अंदर का रास्ता। स्टेट हाईवे होता नहीं, इन्हें 2 ही है, वो सामने आता है। यहाँ क्या 4 वे जाने, बीच में डिवाइडर वाला रास्ता है, तो आपको 1 वे मिलता है, स्पीड मिलती है। तो बहुत टाइम लगा, क्योंकि निकलना नहीं, आगे कोई गाड़ी जाती है तो आप निकल नहीं सकते, सामने से गाड़ी आती रहती है। 2 घंटे लग गए। फिर वो मुझे डांटते रहे, मैं क्या करूँ। ड्राइविंग जो करते हैं उनको ध्यान रखना होता है कहाँ एग्जिट आई। और जब एग्जिट चली गई, मेरे साथ बात मत करो। ठीक है। और मुझे तो पता नहीं था कि 15 मिनट में आएगा। वो घर पर गए तब पता चला, बोलो इधर एयरपोर्ट है। और ये आए 2 घंटे के बाद, कहाँ घुमा के ले आए, बोले आप। बोलो ऐसा भी होता है, ये ध्यान नहीं रहता है, ऐसा होता है। बोला इसीलिए ये व्यवहार को व्यवहार ही है, वो समझ लिया तो आप निश्चय में पक्के हो गए। निश्चय प्राप्त हुआ है कृपा से, लेकिन अभी व्यवहार की असर में होती रहती है। वो मेरेपन की असर से आप उसकी असर में आते रहते हैं। समझ में आया? शिव जी कहते हैं शादी हुई है तो थोड़ा पढ़ो ना, ज़्यादा नहीं पढ़ने का है, 15 मिनट में तो हो जाता है, वो एटलीस्ट रोज करो, अच्छा रहेगा। एक पद सुना दो अच्छा था। इसमें है ही नहीं, नहीं भी हो सकता। बहुत पुराना है। गिरीश सका सिंगल 2 बुक છે પણ ये वो भी दे दो ना। 2 मिनट। हाँ फोन में आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, पढ़ पाएंगे। You are okay.
वैसा इसमें आ जाएगा कैसे टीवी पे कैसे यूट्यूब वो बोलो दादा के दादा गीत हाँ यूट्यूब नहीं वो गाना नहीं चाहिए गाने का हमें उसकी स्क्रीन पर आना चाहिए पढ़ने का वो चाहिए, सुनने का नहीं चाहिए। पढ़ने का आएगा ना स्क्रीन मगर सबकी नजर कैसे रखोगे तो नहीं बराबर है ना एक मिनट रुको ठीक है हेलो बिल्कुल बोलो ना पद क्या है गा के दादाजी तो आपको भेज दिया भेजिए हाँ वो हिंदी दूसरा ये दूसरा ये हिंदी में नहीं है जुलूस वाला हमको फोटो बड़ा ले लो क्विकली बुक लीजिए एक मिनट कितने बेच लिया हाँ भले एक में ओके उनको भी दिया हाँ हाँ ठीक बस बस आ गया आसान है बोल पाए फिर भी जिनको मिल गया चलो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद करेक्ट जय सच्चिदानंद गा गा के दादा गीत गा के दादा गीत निज पद को स्थिर करो पद को स्थिर करो तन मन जगमग कर दो मन जगमग कर दो स्वपद को अमर कर दो स्वपद को अमर कर दो गा गा के दादा गीत गा के दादा गीत मानव के भव में ही मानव के भव में ही मुक्ति का पथ मिले मुक्ति का पथ मिले दूसरी सब गतियों में दूसरी सब गतियों में कर्मो फल रस पीले कर्मो फल रस पीले जीव मीट के शिव बनो जीव मीट के शिव
बनो ईश्वर जागृत कर दो, ईश्वर जागृत कर दो, मानव से देव बनो, मानव से देव बनो, खुद को ही खुदा कर दो, खुद को ही खुदा कर दो, गा गा के दादा गीत, गा के दादा गीत, निज पद को स्थिर करो, निज पद को स्थिर करो, तन मन जगमग कर दो, तन मन जगमग कर दो, स्वपद को अमर कर दो, स्वपद को अमर कर दो, जीवन का मूल हेतु, जीवन का मूल हेतु, स्वगुण प्रोडक्टिवली, स्वगुण प्रोडक्टिवली, सब संसारी सुविधा, सब संसारी सुविधा, बाय प्रोडक्शन की गिफ्ट, बाय प्रोडक्शन की गिफ्ट, जग कल्पित भ्रांति है, जग कल्पित भ्रांति है, रिलेटिव इफेक्टाभ्यास, रिलेटिव इफेक्टाभ्यास, सुख आत्मा का गुण है, सुख आत्मा का गुण है, उदगल डिसमिस कर दो, उदगल डिसमिस कर दो, कुछ बातें याद आए, कुछ बातें याद आए, दिल मजबूत कर लेना, दिल मजबूत कर लेना, दो आंसू का अभिषेक, दो आंसू का अभिषेक, दादा को चढ़ा देना, दादा को चढ़ा देना, अपना आत्मा स्थायी, अपना आत्मा स्थायी, पानी जग अस्थाई, पानी जग अस्थाई, है टेम्पररी सब भूल, है टेम्पररी सब भूल, परमेनेंट सिद्ध कर दो, परमेनेंट सिद्ध कर दो, गा गा के दादा गीत, दादा के दादा गीत, निज पद को स्थिर करो, निज पद को स्थिर करो, तन मन जगमग कर दो, तन मन जगमग कर दो, स्वपद को अमर कर दो, स्वपद को अमर कर दो, खुद को ही खुदा कर दो, खुद को ही खुदा कर दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पूतगल डिसमिस कर दो। हाँ, यानी इसका मतलब क्या है? ये जो पुद्गल है वो
गलती का परिणाम है। और तो आंसू का अभिषेक बताया ना, कि कुछ बातें याद आए, हमको पता चले कि ऐसी गलती हो गई थी, तो वो याद आती है तो बताती है कि अभी कचरा क्यों दिखाई देता है, गिरा था और आपने उठाया नहीं था, इसलिए दिखाई दिया। तभी आपको क्या करना चाहिए, साफ करना। उठा के कचरे के डिब्बे में डाल दो। तो ये 2 आंसू का अभिषेक दादा को चढ़ा देना, यानी उसका पछतावा करना। तो पछतावा करने का मतलब उठा के डिब्बे में डाल दो। सारे दिन यही करना है, नई गलती होती नहीं है। जो पुरानी अंदर भरी पड़ी है ना, दब के रही है, तो संजोग आते तो बाहर निकलती है। तो भी उठा के कचरे के डिब्बे में डाल देने का, यही काम है। नया कचरा बढ़ता नहीं है, पुराना कचरा इस तरह से संजोग के अनुसार बाहर आता रहता है, और आप बैठे बैठे सफाई करते रहो। तो मन तो हमेशा ऐसा ही बोलता रहता है, नवा भरा तो है, ये भरा है, तेरी गलती है। वो मन को वो तो बताता है, लेकिन हमारे पास मन है ना, वो गत दर्शन है बताया। हाँ, गत दर्शन यानी पहले की मान्यता, पहले की समझ का फल। इसीलिए मन तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा ही बताएगा। तो वो तो नवे कर्म बंधा देता है ना फिर। वो नहीं, जिनको दृष्टि मिली वो नया कर्म नहीं बांधते, क्योंकि वो मन से सहमत नहीं होते। मन जब ऐसा कुछ विपरीत बताता है तो उसकी असर में आ जाते हैं, लेकिन जैसे उसका धक्का कम होता है ना, तो जान जाते हैं, अरे गलत हो गया। वो बात सही है, ये बात तो निकल ये गया। इसीलिए हमें पता चलता है कि हमें सही में मोक्ष मार्ग मिला है। धक्के में पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे धक्का शांत होता है ना, तो तुरंत पता चल जाता है कि ये गलती हो गई, दादा माफ करो। बस इतना पछतावा भी हो ही जाता है। अगर आप ढंग से उसका प्रतिक्रमण नहीं करो वो अलग बात है, लेकिन अंदर एक हल्का सा पछतावा तो हो ही जाता है। वही बताता है कि अंदर जो संकित बल है ना, जागृति खुली है ना, जागृति काम करती है, जागृति काम करती है। ऐसा आराम से रहेंगे ना, तो 15 भाव में काम खत्म हो जाएगा। हाँ, जल्दी नहीं करना, बोले आराम है, ठीक है, मजा करते करते जाओ, तो हो ही जाएगा, क्योंकि नया बनता नहीं है। ऐसा बताया जाता कि ऐसी कर्म की कोई टंकी की क्षमता नहीं है कि ऐसा ज्ञान मिलने के बाद वो 15 भाव से ज्यादा टिके। लेकिन 15 भाव तो पता नहीं, ये जन्म में दम निकल जाता है, ऐसा हो जाता है। वो तो 15 तक तो बोले वो वैसे ही है। इसीलिए बहुत वो अंदर से करते हैं ना, तो बहुत हो गया, अभी नहीं पाई गया था, नहीं जाला बोलते ना, बहुत हो गया अभी, छूटना है। उसको भी देखने का है। सब कुछ देखने का ही है। तीसरी आँख खुल गई ना, करने का कुछ नहीं है। वो व्यवस्थित शक्ति करती रहती है, करवाती रहती है, आप देखते रहो। ये जीतू भाई क्या करते रहते सारे दिन, ऐसा है। और अगर कुछ ऐसा कुछ कर लेते, दूसरे को दुख होता है, ऐसा है, तो बोलो अरे भाई मोक्ष में जाने का ये धंधा नहीं है। आप भी परेशान होंगे, मुझे भी परेशान करोगे, तो मुझे मेरी शांति के लिए जरा ये कर दो, तो आपको भी शांति हो जाएगी, मुझे बड़ी शांति हो जाएगी। ऐसा है। एक शादी हो जाएगी तो आपको टेंशन कम हो जाएगा ना। आज ही कितनी टेंशन है बहुत, और आप कुछ नहीं करते। कैसा हंस रहा है ना। हाँ वो तो बराबर है। ऐसा है। आता बोला कीर्तन भक्ति करो यार, झगड़ा शादी सबके प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए सब अपना अपना वो कर ले रहे हैं। अच्छा दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम
જય જયકાર હો ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો 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 ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો
જય જયકાર હો અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો ભગવાનના અસીમ જય જયકાર જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ